Hello students, welcome back to RAKVB learning. In today's class, we will learn about location and time of this chapter. That is your chapter number 5 of your SS textbook. I want all of you to open it. Please open your textbooks, dear student. Yes, students, you all must be interested to know that where our India is located, where our Gujarat is located, right? So, what are this vertical and horizontal lines on the globe of the earth? आपको ग्लोब दिख रहा है तो आपको उसमें एकदम थिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस भी दिख रही है राइट सो दे आर इमेजिनरी लाइंस एंड नॉट ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऐसे कोई भी लाइंस ड्रॉ की हुई है नहीं दिस आर ओनली द imaginary lines. The horizontal lines are called latitude and the vertical lines are called longitude. जो सीधी ये जो देखो बच्चे लोग ये ध्यान से देखना ये वाली जो लाइंस है these are called longitudes and the lines which are parallel are said to be latitudes. So, measure the angles of different places in the classroom with the help of a protractor, pencil and paper. Draw a circle on a paper and write down the angles of the circle at 10 degree, 90 degree, 30 degree and 60 degree. देखो इस तरीके से आपको draw करना है और angles mark करना है. Latitude is an angle which ranges from 0 degree to the at the equator and 90 degree at the poles. देखो पहले तो ये समझो poles किसको कहते हैं तो पोल्स हम इसको कहते हैं दिस इज आर सदर्न पोल एंड दिस वन इज आर नॉर्दर्न पोल ठीक है अब इन सब के बीच में होता है इक्वेटर जो लोकेटेड है 0 डिग्री पे और पोल्स हमारे हैं 90 डिग्री दोनों 90 डिग्री पे लोकेटेड है ठीक है ये आपको याद रखना पड़ेगा और एंड line of latitude run east west as circle parallel to the equator कैसे run करती है east west draw a circle and mark a line of latitude with the help of a map mention the various countries through which the latitude passes draw a latitude of 23 degree 5 north and south and write the names of the country through which they pass the equator is the middle latitude or the 0 degree latitude which divides the earth into northern and southern hemisphere. See, every one of us know that our earth is round, right? So the equator divides it into two halves and the upper part is northern hemisphere and the lower portion is southern hemisphere. Okay, so the equator is at the middle latitude and it is located at 0 degree North Pole at 90 degree and South Pole also at 90 degrees south. So how many latitudes pass, right? Now, among the uncountable stars in the sky, there is the one bright star usually seen in the north is called North Pole. अगर अब अभी आपको लगता होगा कि हम नॉर्थ कैसे ढूंढे कंपास तो आज के ज़माने में है पहले तो कोई कंपास थे नहीं जिसकी वजह से हम नॉर्थ तो या साउथ डायरेक्शन को ढूंढ सके क्या किया जाता था उस वक्त कि पोल स्टार एक अब स्टार्स अगर देख रहे हो तो एक जो ब्राइट शाइनी बड़ा स्टार है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं जिसकी वजह पोल स्टार कहते हैं और ये नॉर्थ डायरेक्शन दिखाते हैं इसलिए हम इसको नॉर्थ स्टार भी कहते हैं गुजराती या हिंदी में इसको ध्रुव तारा कहा जाता है जो सप्तऋषि के नीचे के दो स्टार्स के एंगल लेते हुए जाता है ये कॉन्स्टिलेशन है क्या है एक टाइप का कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स यहाँ से अगर आप ये देखो तो दिस इज आर स्टार विच इज कॉल्ड नॉर्थ स्टार और अ पोल स्टार now a small activity is been given so that you can find out the latitude take a big protractor make a hole in the center and tie a thread बच्चे लोग ये जब हमारी स्कूल ओपन होंगी हम क्लासरूम में होंगे ना तो मुझे याद दिलाना हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे ठीक है चलो longitudes and latitudinal coordinates of a place the vertical imaginary lines drawn on a globe that run in the north south direction are known as longitudes longitudes क्या है
The line which the vertical lines or the vertical imaginary lines that are drawn on the globe, and it runs north to south. Latitudes run from east to west, and the northern longitudes run from north to south. Now, major longitudes. Now, the first major longitude is prime meridian, जिसे हम ग्रीनविच कहते हैं. The 0 degree longitude that passes through Greenwich in England is known as prime meridian. वो 0 degree longitude, जैसे इक्वेटर 0 डिग्री का जो है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, तो जीरो डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, सॉरी 0 डिग्री के लैटिट्यूड को जैसे हम इक्वेटर कहते हैं, तो वैसे ही 0 डिग्री के लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो ग्रीनविच या इंग्लैंड में जो है वहाँ से पास होता है. ये अर्थ को 2 वर्टिकल हाउस में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. जैसे वो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करता है इक्वेटर, वैसे ही ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन किसको डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर. इट हैज़ लॉन्गिट्यूड एक्सटेंडेड अप टू 180 डिग्रीज. Latitudes are extend from 0 to 90 degree and longitudes are extend from 0 degree to 180 degree on both eastern and western side. Since it passes through Greenwich, it is generally referred as the prime meridian. ग्रीनविच से पास होता है और इसे क्या कहा जाता है, prime meridian. The second is international date line. There is only one 180 degree longitude which is known as international date line. When one crosses this line, the day and date changes. एक बार हम ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड का सर्कल घूम जाता है तो पूरा दिन और रात का एक चक्कर कट होता है. The international date line passes through Pacific Ocean and separates 2 calendar dates. It is not exactly 180 degree at all places, since the line crisscrosses across several time zones. This is because if it is drawn straight, then the line has to pass through many islands, and due to this, they might have 2 day or 2 dates on the same island. तो ये बड़ी मुश्किल का है, क्योंकि अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री को गिना जाए तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि एक बार दिन ख़त्म होने में कभी कभी 2 डेट्स चेंज हो जाएगी. दिस माइट क्रिएट कन्फ्यूजन, राइट. अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो कितना कन्फ्यूजन होगा. इसीलिए क्या डिसाइड किया गया है, देयरफॉर द लाइन व्हेन इट पासेस ओवर लैंड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स वाटर बॉडीज, एंड सो इट इज नॉट स्ट्रेट बट zigzag. सी द इंटरनेशनल डेट लाइन. अगर इससे इस पार हो तो संडे है, उस पार हो तो मंडे है, राइट. द सन इज द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ. जब हमारे पास घड़ियाँ नहीं थी तब हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे एंशिएंट टाइम में लोग थे, वो सूर्योदय और सूर्यास्त को ही अपना समय मानते थे. द टाइम एट एनी प्लेस इज डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई एंड इट्स लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड और सन की पोजीशन स्काई में दोनों चीज़ें डिसाइड करती है टाइम को. द अर्थ कम्प्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स. एक रोटेशन, हमें ये पता है कि एक रोटेशन ख़त्म करने में कितना टाइम चाहिए हमें, 24 आवर्स, राइट. सो देर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स इन ऑल. कितने हैं, 360. 180 इस तरफ के और 180 ईस्टर्न के और 180 वेस्टर्न के. सो इन दिस वे 15 लॉन्गिट्यूड पास बाय द सन एंड 1 आवर. तो इस तरीके से 15 लॉन्गिट्यूड कितने आवर में पास हो जाते हैं, 1 आवर में. 1 लॉन्गिट्यूड टेक 4 मिनट टू रोटेट. अब एक लॉन्गिट्यूड को 4 मिनट लगता है. दैट मीन्स 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितने मिनट्स का डिफरेंस है, 4 मिनट्स का. सो एक 180 से लेके 180 तक कितना होता है. देयरफॉर द टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ वेराइज एज पर द लॉन्गिट्यूड. इसीलिए अगर हमें अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो गया होता है तब भी गुजरात में अंधेरा ही होता है. अब देखो तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस है, बट हम क्या ऐसा डिसाइड करते हैं, नहीं. तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन, टाइम की कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए लोकल टाइम डिसाइड किया जाता है. Time taken according to the overhead position of the sun is a particular place and is known as the local time of that place. It differs by 4 minutes with every 1 degree longitude. हमें ये पता है कि एक longitude की डिग्री पे के दूरी पे 4 मिनट का डिफरेंस है. तो when any longitude faces the sun directly, it would be 12 noon in all the places on that longitude. In this way, the local time of the place is decided according to mid-moon.
The places located on the same longitude have the same time and the places located at different longitude have in the same country have different time. एक ही country में अलग अलग longitudes होते हैं, right? तो जितना 180 डिग्री पे जो टाइम है वो 180 की सारे पार्ट्स में सेम ही टाइम रहेगा. अगर वो 360 पे है तो सॉरी, अगर वो 10 डिग्री पे है तो 10 डिग्री पे भी लॉन्गिट्यूड पे सभी का सेम टाइम होगा. एक भले एक ही कंट्री पे अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे भी अलग अलग टाइम देखने को मिलता है. तो टाइम की कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया गया. द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द कंट्री इज टेकन एज द standard time. This means that the time is fixed on the basis of a particular longitude in the country, which is known as standard meridian. Standard time. The standard time of a country is decided on the basis of 82 degree 5 eastern longitude, which passes through Allahabad. कहाँ से पास होती है? Allahabad. That is the center of the earth. Center of the India. This means that if it is 12 noon in Allahabad, it is 12 noon everywhere in the country. This makes it convenient for the smooth administration of the country. टाइमिंग के इश्यूज ना क्रिएट हो, इसीलिए ये लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया गया है. तो पूरी कंट्री में जो एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया वो ही पूरी कंट्री को फॉलो करना रहता है. आज के चैप्टर में बच्चे लोग हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि कैसे हम हमारे टाइम्स को डिसाइड करते हैं और टाइम किस बेसिस पे डिपेंडेंट है. तो टाइम किस बेसिस पे डिपेंडेंट है? तो कहा गया है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन लॉन्गिट्यूड्स ऑफ इंडिया, ऑन द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द ग्लोब, राइट. फिर हमने ये यहाँ पे और एक चीज़ सीखी कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स किसको कहते हैं. लॉन्गिट्यूड के ईस्टर्न पार्ट को क्या कहते हैं और वेस्टर्न पार्ट्स को क्या कहते हैं. इक्वेटर की ऊपर नॉर्दर्न पार्ट को क्या कहते हैं और सदर्न पार्ट को क्या कहते हैं. तो अर्थ के टोटल 4 पार्ट डिविजन्स होते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर डिवाइडेड, दैट वाज डिवाइडेड ड्यू टू इक्वेटर, एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर विच इज़ डिवाइडेड ड्यू टू प्राइम मेरिडियन. तो बच्चे लोग, आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सेशन. Thank you students for listening this chapter very well. Please read it out thoroughly at your home. In the next in the next lecture, we will be starting with our 6th chapter. Okay students, have a nice day.